अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू पीएसएल का फ्लेवर। एशिया कप के फ्लेवर की भरपूर कामयाबी के बाद हमने सोचा कि आपको पीएसएल के फ्लेवर से महरूम नहीं रखा जाएगा एंड दैट इज द रीजन कि वंस अगेन आई एम हियर एट द दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, एक आइकॉनिक रिंग ऑफ फायर जिसको आप लोग अब बहुत अच्छी तरह जान गए होंगे बिकॉज ऑल 4 सीजन्स ऑफ द पीएसएल स्टार्टेड हियर। और एक मर्तबा फिर ग्लिटरिंग सेरेमनी, दैट्स व्हाट वी सॉ हियर। जुनून की परफॉर्मेंस, आइमा बेग की परफॉर्मेंस, बॉनी एम की परफॉर्मेंस में मेरे पैदा होने से पहले वो बहुत मशहूर थे इसलिए मुझे उनका थोड़ा कम पता है। Anyway, the best part of the PSL this season is कि 8 मैचेस खेले जाएंगे पाकिस्तान में, जिसमें से फाइनल जो है वो होगा 2018 की तरह कराची में। So all roads are leading to Karachi. नेशनल स्टेडियम कराची was the venue जहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना सेकंड टाइटल जीता और टिल डेट दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल साइड इन PSL's हिस्ट्री। इस मर्तबा दे स्टार्टेड ऑन अ ब्राइट नोट बीटिंग लाहौर कलंदर्स, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रगल रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास एक नया लीडर है मोहम्मद समी एंड ये हमने ट्रेडिशनली भी देखा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड स्टार्ट स्लो करते हैं लेकिन व्हेन इट मैटर्स मोस्ट देन दे कम आउट गुड और उसके बाद सबको सरप्राइज कर देते हैं। Let's check out their top 3 performances in this year's PSL so far. Picked up and hit firmly. Luke Ronchi is looking good here today. Well, short, picked up, smashed again, this time for 6 by Ronchi. He is in the groove today. This time over, long off, it's another 6. This is brilliant batting by Luke Ronchi of Islamabad, and it brings up the 50. Short again, crack! It's another boundary, and Ronchi is climbing into Andre Russell. He cares little for reputation. 50 up for Luke Ronchi. This has been a marvellous innings by Ronchi. Oh, has he caught it? Celebrating. Oh, that's straight, but out. Good connection, really was. Goodness, there it is, it's got to be yellow ripper. Sammy is first with a hat-trick. Talk about punt. Farhan, he is hitting everywhere. Another catch for him. And celebrations for Islamabad United. Finally, Dean Jones can smile here. He's made some good room here for the shot. What a beauty that is. Oh, he was waiting for it. And it's another 6. Oh, that's a gorgeous shot from Luke Ronchi. Very easy. And they've into a gap. Oh, just shy of 6. He's confident here. Oh, it's going to have to be a dive, maybe. He's going to get 4 more here. Full toss, punished. Oh, nicely done. Very nicely done indeed. हमेशा की तरह इस मर्तबा भी स्टेलर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है पीएसएल में और यही खूबसूरती है पाकिस्तान सुपर लीग की। तो हु इज द फ्लेवर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सो फार? लेट्स फाइंड दैट आउट। Down the wicket and to be in great shape and great rhythm. Oh, another one. It's gone, bites the dust. Hassan Ali. Hassan Ali to Hamad Azam. Oh, this must be dead. Must be dead. He's got his man and he's got his fourth.
PSL फ्लेवर का मुनफरिद फ्लेवर ये है कि प्रोबेबली द यंगेस्ट क्रिकेट एनालिस्ट इन द वर्ल्ड की एक्सपर्ट ओपिनियन का फ्लेवर हमारे सफर का हिस्सा रहेगा। लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू द लिटिल जीनियस जिन्हें हम प्यार से मिस्टर जेड कहते हैं। When Lahore Qalandars beat Multan Sultans and they left it to the final ball with a wonder show of sixes from David Wees and A.B. de Villiers. And they had 3 runs to spare on the last ball and David Wees scored a flat 6 to end the game, and they won by 6 wickets. I think Quetta Gladiators will win the PSL 4 as they've been consistent throughout the tournament so far. They've won every match so far. I think they can win with their ball first, chase a total tactic, and I think they'll continue their dominance throughout the year. Shane Watson, because he bats with rhythm and consistency, he hits constant 4s and 6s. He's a natural big hitter, and as an opening batsman, I think he'll power Quetta Gladiators to winning the PSL 4 this season. I'm sure as the tournament wears on, Mr. Z से और भी बहुत सारे gems सुनने को मिलेंगे। Time for us to head into a very short break here। जब हम वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बहुत ही special player from Islamabad United who has a strong Karachi connection. Stay tuned. A very warm welcome back to PSL का फ्लेवर। जैसे मैंने आपको ब्रेक से पहले कहा था कि एक स्पेशल गेस्ट who has a very strong Karachi connection, of course, who else? रुमान रईस। रुमान, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो that you are back in the Islamabad United colours। बहुत ही गंभीर इंजरी थी वो, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। 1 साल से ज़्यादा तकरीबन उसने आपको बाहर रखा फ्रॉम एक्शन। जी ज़ेब भाई, ऐसा ही है क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं खेल रहा था और जब मैं ग्राउंड में मेरा नी स्टक हुआ तो उसके बाद आई कांट इवन वॉक, और उसके बाद वो बड़ा मुश्किल टाइम था, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र कि अल्लाह ने हिम्मत दी और मैं वापस आया माशाल्लाह। और उसके बाद जब यहाँ पर आकर पहला ओवर कराया आपने, इस वक्त रुमान रईस इन टर्म्स ऑफ अपनी लय के कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है कि इट्स द सेम रुमान रईस ऑफ द ओल्ड? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा है प्रॉब्लम। अगर लास्ट ईयर अगर आप जैसे कंपेयर करें 100% पे, तो अभी मेरा ख्याल है कि 85-90% है, क्योंकि जब आप देखें 1 साल के गैप के बाद आते हैं तो आपके माइंड में ये चीज़ होती है कि यार एक फेयर होता है कि अल्लाह ना करे कि दोबारा कुछ ना हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र, जब मैंने अपना पहला ओवर किया अपने पहले मैच में आफ्टर 1 ईयर्स, तो उसके बाद मेरा वो फेयर ख़त्म हो गया। तो अब मैं ये फ़ील कर रहा हूँ, जैसे कल भी मैंने बॉलिंग की तो कल मैं काफ़ी अच्छे पेस पे कर रहा था। मतलब पहला मैच मेरा 128-130 पेस आ रही थी, कल 135-136। तो आई फील कि अब मैं इम्प्रूव करूँगा आहिस्ता आहिस्ता और अपनी एनर्जी ज़्यादा डालूँगा मैच में, अपने आप को बेहतर फील करूँगा, क्योंकि मैं अभी मैचेस भी खेल रहा हूँ। साथ साथ जो मेरा 1 साल की वजह से मेरा वेट या मेरी हर चीज़ फैट लेवल वगैरह बढ़ी हुई थी, उन चीज़ों को भी साथ साथ मैं नीचे लेकर जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे वो चीज़ें मेरी बेहतर होती जा रही, वैसे वैसे मेरी ग्राउंड के अंदर जो परफॉर्मेंस है या मेरा जो भागना है बॉलिंग के अंदर, रनअप है मेरा, वो सब चीज़ें कंफर्टेबल होती जा रही हैं इंशाल्लाह। और इस दफ़ा एज वी नो दैट 8 मैचेस आर इन पाकिस्तान और कराची में फिर से एक दफ़ा फाइनल होगा, और सब जानते हैं कि यू आर फ्रॉम कराची एज वेल। कैसा महसूस होता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान के अंदर एक्सपैंड भी कर रही है और इवेंचुअली यही प्लान्स हैं कि मुकम्मल तौर पर लीग पाकिस्तान में खेली जाए? जी बिल्कुल, मेरी तो ख्वाहिश ही यही है कि अगले साल आने वाले सालों में या अगले आने वाले साल में पूरी पाकिस्तान सुपर लीग कराची में हो या पाकिस्तान में हो पूरे, क्योंकि उसकी मेन वजह ये होती है कि जब भाई यहाँ क्राउड सिर्फ वीकेंड पे आता है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में होगा ना तो पाकिस्तान में हर मैच हर रीजन अपने अपने रीजन को सपोर्ट करने आएगा और बड़ा एनर्जेटिक क्राउड होता है हमारा पाकिस्तान का। और मतलब जितना मैंने पिछले साल में देखा है, जब हमारा सेमीफाइनल और फाइनल जब कराची और लाहौर में हुआ है तो अमेजिंग क्राउड था, अमेजिंग एटमॉस्फेयर था, मतलब एक फील ही अलग आता है पाकिस्तान में खेलने का। कराची का फ्लेवर इन इटसेल्फ आई थिंक सबसे ज़्यादा कॉस्मोपॉलिटन सिटी है पाकिस्तान की, आपको हर फ्लेवर मिल जाता है कराची में। तो कराची की जहाँ पर बात करते हैं, सो लेट्स
टॉक अबाउट कराची थोड़ा सा इन डेप्थ। एक रैपिड फायर है हमारे पास जो कि हमें ज़्यादा बताएगा बेहतर तरीके से कि आपका और कराची का कनेक्शन क्या है। फेवरेट फूड क्या है आपका कराची? बिरयानी। अच्छा, आप भी उनमें से हैं जिनको आपको लगता है कि लाहौर वालों को बिरयानी नहीं आती बनानी? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हूँ, लेकिन मशहूर है। मतलब अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखें, कराची की बिरयानी बहुत मशहूर है। हाँ, क्योंकि कई लोग कराची वाले दोस्त मुझे कहते हैं कि लाहौर वाले जो हैं वो आज तक हमें पुलाव खिला खिला के कहते हैं ये बिरयानी है। सबसे ज़्यादा फेवरेट स्पॉट क्या है आपका कराची का, जहाँ पे दोस्तों के साथ जाते हैं? जी, मैं हैंग आउट करने दो दरिया जाता हूँ। वो बड़ी एक अच्छी सुकून वाली जगह है, वहाँ माहौल बड़ा अच्छा है, समंदर का बिल्कुल किनारा है और वहाँ रेस्टोरेंट बना हुआ, तो बड़ा अच्छा माहौल लगता है। व्हाट इज़ योर ऑल टाइम फेवरेट फिल्म? फेवरेट फिल्म मेरी ऑल टाइम फेवरेट, वैसे तो मैं SR के फ़ैन हूँ और मतलब मैं उसकी फिल्में ही सिर्फ देखता हूँ, लेकिन अभी मेरी ऑल टाइम फेवरेट जो मूवी हो मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट, जो भी लास्ट आई थी टॉम क्रूज़ की, मुझे बहुत अमेजिंग मूवी लगी। शाहरुख खान को ये बात अच्छी नहीं लगेगी? नहीं, ठीक है, लेकिन वो असल में अगर आप देखना मतलब मुझे एक अच्छी एक्शन मूवीज़ मुझे बहुत पसंद है, सही। तो मैं ज़रा टॉम क्रूज़ को बड़ा फॉलो डॉन करता 2 हूँ। नहीं पसंद थी आपको? डॉन 2 एज सच, क्योंकि वो डॉन 1 ज़्यादा बेहतर थी, डॉन 2 उतनी बेहतर नहीं थी। अब देखें, होपफुली डॉन 3 अच्छी हो। फेवरेट सिंगर? आपदा परवीन। आपदा परवीन, ग्रेट चॉइस। आप करंट क्रिकेटर्स में वो कौन है जैसा आप बनना चाहते हैं? देखिए, अगर आप फिटनेस को फॉलो करें तो मैं बनना चाहता हूँ विराट कोहली जैसा। हर किसी क्रिकेटर की एक वो होती है कि जितना उसका फिटनेस का लेवल है तो उस तक बंदा पहुँचे, और अगर एज अ बॉलर देखें तो आई थिंक ट्रेंट बोल्ट मुझे बहुत, मैं उसको फॉलो करता हूँ। ग्रेट चॉइस है, बहुत ही बेहतरीन बॉलर है ट्रेंट बोल्ट। अच्छा, आपके पास चॉइस है इन 3 लोगों में से, आपने इनके साथ ट्रैवल करना है, किसके साथ करेंगे? हानिया आमिर, ईमान अली या मोमिना मुस्तहसन? मुश्किल है, लेकिन मोमिना मुस्तहसन। मूविंग ऑन रोमान, सबसे बड़ा ख्वाब क्या है आपका? सबसे बड़ा ख्वाब ये है कि मैं वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर बनूं और लोग मुझे अच्छे में याद रखें। फेवरेट ग्राउंड कौन सी? लॉर्ड्स। ग्रेट चॉइस। अगर आप क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? मैं अगर क्रिकेटर ना होता तो मैं बिजनेसमैन, या फिर मैं अपने फादर का ख्वाब पूरा करता, जो उनका एक ख्वाब था कि मैं उनकी पोस्ट पे जाऊं। अच्छा। यानी एज अ बैंकर वो MCB में थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा मेरा स्पॉट ले। कभी किसी फैन ने तंग किया आपको? नहीं, ऐसा सच तो नहीं किया, लेकिन नॉर्मली तो वो चीज़ चलती रहती है ना कि सेल्फीज देते हैं, ऑटोग्राफ देते हैं, वीडियोस बना दें। चले, तो वो तंग है, करना हाँ। नहीं है, बेसिकली उनका मोहब्बत और प्यार। वो तो प्यार है, वो मोहब्बत है, ठीक हो गया। कभी किसी टीम मेंबर के ऊपर आपने प्रैंक किया है? नहीं, कभी नहीं। मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट क्या था अब तक का आपकी ज़िंदगी का? 2 मेरे लिए बहुत मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स हैं। एक ICC चैम्पियंस ट्रॉफी और 2 दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए चैम्पियंस ट्रॉफी जीतता। बेस्ट मोमेंट्स है मेरी लाइफ में। कभी आपने अपना फ़ोन नंबर दिया किसी फ़ैन को? शुरू में दिया करते थे, जब पता चला कि यार फ़ैन फॉलोइंग ऐसी होती है तो चलो इसको भी दो, उसको भी, उसको भी, अब अवॉइड करता हूँ। अच्छा, चलो, so that was it as far as Karachi and himself was concerned, और अब हम मूव करेंगे towards the team itself, Islamabad United। जी, the Islamabad United, it's basically आपकी टीम मेंबर्स के बारे में कुछ सवालात हैं। बेस्ट सिंगर इन द टीम कौन है? बेस्ट सिंगर इन द टीम फ़हीम अशरफ। सबसे ज़्यादा क्या खर्च कौन है टीम में? ये अच्छा सवाल है, वैसे 1-2 ही होंगे। सबसे ज़्यादा मैं कभी असल में किसी के साथ आउटिंग पर उस तरह से गया नहीं हूँ, तो मुझे उतना सेंस नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिसको मैं फॉलो करता हूँ, देखता हूँ चीज़ें उसकी पहनने ओढ़ने से और उसकी घड़ी है वो, तो मुझे शादाब खान का थोड़ा सा लगता है कि वो ऐसा क्या खर्च है। सबसे कंजूस कौन है? ये भी मुश्किल सवाल है, क्योंकि सबसे कंजूस आई थिंक यार ऐसा सच तो कोई भी नहीं है। अच्छा, सबसे ज़्यादा वक्त कौन लगाता है शीशे के सामने तैयार होने? आई थिंक हमारे मीडिया मैनेजर। अच्छा, ओह, उनकी जिस तरह दाढ़ी सेट होती है, जिस तरह बाल सेट होते हैं, क्योंकि मैंने उनको देखा है, वो और प्लस फिर फ़हीम अशरफ। सबसे ज़्यादा सुस्त कौन है? आसिफ अली। आसिफ अली, अच्छा, वाह, वैसे सुस्त है और बड़े ग्राउंड में छक्के मारता है। फनीस्ट निकनेम किसका आपको लगता है? इस्लामाबाद यूनाइटेड ने में थिंक रेहान और हसन चीमा ने इतने ज़्यादा ये नाम रखकर सबके। आई थिंक मुझे 2 से 3 नाम लगते हैं जो बहुत फ़नी है। लाइक एक साहिब फरहान का पटाखा और आसिफ अली का लपाड़ू, हाँ, और ज़फ़र गौर का
मस्ताना। मस्ताना? अच्छा, ये मुझे भी नहीं पता इन था। तीनों के जो निकनेम्स के नेम मतलब एक निकनेम्स है ना, जैसे मस्ताना, पटाखा और लपाड़ू, थोड़ा सा हम लोगों को मजाकिया में हम लोग कहते हैं, तो इसलिए फनी लगता है। किसी ने एतराज किया कभी किसी प्लेयर ने? नहीं, मेरा यार कभी नहीं नहीं, नाम कभी ना नहीं, सब रखना। एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। अच्छा, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको ब्राइट फ्यूचर किस प्लेयर का लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड? मे बी शादाब खान। दैट्स अबाउट इट। बहुत अच्छा किया आपने। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे कॉन्वर्सेशन विद ऑफ कोर्स रुमान रईस। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड देन विल बी राइट बैक। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस ऑन PSL का फ्लेवर। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कराची की। थोड़ी सी बात हो जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की जर्नी की। 2 टाइम्स चैंपियन, ऑफ कोर्स दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन PSL's हिस्ट्री टिल डेट। इस्लामाबाद यूनाइटेड को क्या आदत है इस तरह के बड़े स्लो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर जब मैटर करता है तब एकदम लय में आ जाते हैं? जी, बेसिकली हमारी एक हिस्ट्री है जो जैसे आपको पता होगा, पहले साल भी हम 4 में से 3 मैच हारे, दूसरे साल भी हम ऐसे ही 4 में 3 मैच हारे, फिर पिछले साल हमने 4 में से 2 जीते 2 हारे, इस साल भी हम पहला जीते 2 हार गए, फिर अब हमने मोमेंटम पकड़ा। तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड बेसिकली स्लो स्टार्ट करती है और उसके बाद जब मोमेंटम पिक करती है तो फिर वो टिल फाइनल तक माशाल्लाह से मोमेंटम रहता है। पाकिस्तान में तुम्हें पता है कि तब्दीली आ ही गई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी एक बड़ी तब्दीली देखने को मिली है इस सीज़न, और वो है कि मोहम्मद समी इस वक्त कैप्टन है इस्लामाबाद यूनाइटेड के। जाहिर है कि हर कैप्टन का एक तरीका बहुत फ़र्क होता है कैप्टनसी करने का। क्या मुख्तलिफ है मोहम्मद समी में और मिसबाह-उल हक में? नहीं, अगर कंपैरिजन करें दोनों का, तो कंपैरिजन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो एक एज अ बैट्समैन और पाकिस्तान के लिए इतनी इन्होंने कप्तानी की है, तो उनका डिफरेंट लेवल था। समी भाई के साथ वो फास्ट बॉलर हैं और उनके साथ मैंने डोमेस्टिक में बहुत उनकी कप्तानी में खेला हूँ, तो वो भी बहुत कूल पर्सन है। जब वो कप्तान बन जाते हैं तो वो उनको पता है कि यार मैंने अपना एग्रेशन अपने अंदर रखना है, मैंने फील्ड में ठंडा रहना है। जैसे सेम लाइक मिसबा भाई बहुत कूल एंड काम कप्तान थे, तो समी भाई का भी मैंने यही नोट किया जितने साल में उनके साथ खेला हूँ कि जब वो कप्तान होते हैं तो बहुत कूल एंड काम रहते हैं। वैसे आप काफ़ी लकी हैं कि आपको बड़े अच्छे मेंटर्स मिल रहे हैं जो कि बहुत ही कूल और काम रहने वाले लोग हैं। मैंने समी से तो बहुत दफ़ा ये पूछने की कोशिश की है, लेकिन वो बताता ही नहीं है मुझे कि क्या क्या खाते हैं। मतलब इस उम्र में अगर एक इंसान 140 पे करा ही जा रहा है बॉलिंग, तो कुछ तो सही कर रहे हैं वो। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। ऑब्वियसली बात है, देखिए ऑफ द सीज़न वो जो भी करते होंगे ऑब्वियसली वो ठीक करते होंगे, जिसकी वजह से आज तक उनकी फिटनेस बरकरार है। मैंने आज तक नहीं देखा कि 37 या 36 ईयर एज के बाद भी आप 140 प्लस बॉलिंग करें। एग्जैक्टली। तो रुबान, लास्ट सवाल आपसे ये मैं करूँगा कि पाकिस्तान सुपर लीग का क्या इम्पैक्ट रहा है आप पर पर्सनली और ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर? बेसिकली अगर मैं अपने ऊपर रख के बोलूँ तो मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। PSL से मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है, लाइक कि एक इंटरनेशनल जो प्रेशर होता है गेम का वो आपको PSL में फील होता है। तो जब आप यहाँ खेलते हैं तो आपको इंटरनेशनल लेवल पर जाके पता नहीं लगता कि यार कि मैं इतने प्रेशर में खेल रहा हूँ, क्योंकि वो प्रेशर आप हैंडल कर चुके होते हो अपने PSL में। Thank you so much, Ruman. As always, it's a pleasure talking to you, and hope that you get better and better in future and bring a lot of laurels for Pakistan as well and Islamabad United. तो क्या मैसेज है आपका एंड में सबके लिए? एंड में यही मैसेज है, दिस इज रुमान रईस, see you in Karachi. See you in Karachi, and we'll also see you in more shows of PSL का flavor as well. That's all we have for now. Goodbye.